बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर molecular machines found in all living cells that synthesize proteins by translating messenger RNA into amino acid sequences. They can be found in free in the cytoplasm or attached to the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टू फॉर्म्स में हो सकता है, अगर फ्री है तो साइटोप्लाज्म में होगा और अगर अटैच है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स with a specific three-dimensional structure that includes an active site where substrate molecules bind. They have a unique arrangement of amino acids that determines their shape and function, often consisting of one or more polypeptide chains. ये इसमें important है polypeptide chains भी. This structure allows enzyme to catalyze biochemical reactions efficiently. Third है explain enzyme pepsin which does not require cofactor. Enzyme pepsin जिसको cofactor required नहीं होता. Pepsin is a digestive enzyme that breaks down proteins in the stomach. It is produced as an inactive precursor called pepsinogen which is activated by stomach acid HCl या hydrochloric acid. Pepsin does not require any cofactors for its activity. It works optimally in the acidic environment of the stomach where it cleaves peptide bonds to facilitate protein digestion. Fourth question is what is a prosthetic group? Give one example. A prosthetic group is a non-polypeptide until unit that is tightly up and permanently attached to a protein. ठीक है, permanently attached होता है protein and is essential for its function. Example उसकी है heme, which is found in hemoglobin and myoglobin, allowing these proteins to bind oxygen. Fifth है what is the mechanism of enzyme action. इसका जो mechanism है ये थोड़ा lengthy है, जैसे substrate binding. The substrate binds to the enzyme's active site forming the enzyme substrate complex. Second है transition state formation. The enzyme stabilizes the transition state, lowering activation energy for the reaction. थर्ड है प्रोडक्ट फॉर्मेशन. एक्चुअली ये जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन और जो थर्ड पे आ रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन और जो इसके बाद होगा प्रोडक्ट रिलीज, ये इसका मैकेनिज्म है. ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. प्रोडक्ट रिलीज, द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड एंड द एंजाइम इज फ्री टू कैटालाइज अनदर रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री एनर्जी एक्टिवेशन इन अ केमिकल रिएक्शन. द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी EA से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन. इट प्लेज अ क्रूशल रोल बाय. अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं. फर्स्ट है ओवरकमिंग एनर्जी बैरियर. इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट्स मस्ट ओवरकम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स. सेकेंड है डिटर्मिनिंग रिएक्शन रेट. A higher activation energy means a slower reaction rate, while a lower activation energy allows for faster reactions. ठीक है, इनका इनवर्स रिलेशन है. थर्ड है इन्फ्लुएंसिंग catalysis. Enzymes lower the activation energy, making it easier for reactions to occur under milder condition, thus increasing reaction rates without being consumed in the process. नेक्स्ट है लिस्ट द एक्सटर्नल कंडीशन विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. इसमें जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वही हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है उसमें टेम्परेचर. एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसमें वो वर्क करता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. एक्सट्रीम दैट कैन डी नेचर द एंजाइम रिड्यूसिंग एक्टिविटी. सेकेंड इन्वायरमेंटल फैक्टर है pH. Each enzyme has an optimal pH. Deviations can alter enzyme shape and reduce function. Substrate concentration. Increased substrate concentration speeds up the reaction but only until the enzyme is saturated. फोर्थ इसमें है enzyme concentration. More enzymes generally increase the reaction rate as long as there's enough substrate. Fifth है inhibitors. Competitive inhibitors block the active site while non-competitive inhibitors change the enzyme's shape. Sixth इसमें है activators. Activator bind to the allosteric sites enhancing enzyme activity by inducing a favorable shape change.
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपेयर द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो पहले हम ह्यूमन एंजाइम को डिस्कस करेंगे इसमें कि मोस्ट ह्यूमन एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेंटीग्रेड स्केल पर देखेंगे तो वो 37 है, और अगर फ़ारेनहाइट है तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, which is the normal body temperature. This allows them to function efficiently in the normal human body. Second है thermophilic bacteria enzymes. Enzyme for thermophilic bacteria thrive at much higher temperatures, typically between 60 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. और अगर इनको फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो ये 140 to 176 आता है. These enzymes are adapted to function effectively in extreme heat, which is why they are often studied for industrial applications. नाइन्थ है डिस्क्राइब द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच ह्यूमन एंजाइम्स फंक्शन। अब इसमें जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, वही बतानी है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ह्यूमन एंजाइम्स टिपिकली फंक्शन ऑप्टिमली एट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, which is the average body temperature. However, they can remain active within a range of approximately 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. ठीक है, 37 इसका जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लेकिन ये एक्टिव रह सकते हैं 30 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक. Outside of this range, enzyme activity generally decreases with extreme temperatures, potentially leading to denaturation where the enzyme loses its functional shape. Next है what enzyme inhibitors name the molecules which act as enzyme inhibitors. पहले हमने बताया कि enzyme inhibitors होते क्या हैं, और फिर वो molecules जो एज ए enzyme inhibitor एक्ट करते हैं. उसमें फर्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी enzyme inhibitors can be classified into two main types. फर्स्ट इसमें आ जाएगी competitive, और जो सेकंड है नॉन competitive. ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स के हम एग्जांपल्स देंगे जो एज अ competitive एक्ट करती हैं और एज ए नॉन competitive inhibitor. अगर competitive inhibitor हैं, these molecules compete with the substrate for binding to the enzyme's active site. For example, methotrexate inhibits dihydrofolate reductase in cancer treatment. ठीक है, सेकेंड इसमें है नॉन competitive inhibitors. This binds a site other than the active site, allosteric site, causing a conformational change in the enzyme that reduces its activity. और इसकी एग्जांपल है cyanide inhibits cytochrome C oxidase in cellular respiration. अगर आपसे इनहिबिटर्स की टाइप पूछी जाए जिसमें फर्स्ट competitive inhibitor है और सेकंड नॉन competitive inhibitor, लेकिन द थर्ड मोस्ट इज uncompetitive inhibitor. These bind the enzyme substrate complex and prevent the reaction from proceeding. Example इसका है lithium. Affects enzyme involved in the neurotransmitter metabolism. मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं उसमें आ जाता है irreversible inhibitor भी आ जाता है. उसमें क्या है, these bind permanently to the enzyme, often forming covalent bonds that activate it. इसकी एग्जांपल है एस्पिरिन inhibits cyclooxygenase enzymes irreversibly. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ competitive enzyme inhibitors. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इनकी है मेटाबॉलिक रेगुलेशन. मेटाबॉलिक रेगुलेशन में क्या करते हैं कि हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज बाय competing with substrate. सेकेंड है थेराप्यूटिक यूजेस, यूज इन medications, फॉर एग्जाम्पल statins to target specific enzyme in diseases. थर्ड है इम्पॉर्टेंट भी है रिसर्च टूल्स, एड इन स्टडिंग enzyme kinetics and mechanisms. नेक्स्ट है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, हेल्प कॉम्बैट रेजिस्टेंस इन पैथोजेंस और कैंसर सेल्स. लास्ट है एंजाइम स्पेसिफिसिटी, enhance understanding of substrate binding and enzyme function. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब साइनाइड्स एज इरिवर्सिबल नॉन competitive inhibitors. साइनाइड्स को बताना है कि वो इरिवर्सिबल नॉन competitive inhibitors हैं किस तरह से. फर्स्ट बात है उसकी मैकेनिज्म. साइनाइड बाइंड्स इरिवर्सिबली टू साइट्रोक्सोम C oxidase at a site other than the active site. Second है impact. This inhibits the electron transport chain, blocking ATP production and preventing oxygen utilization. Third है physiological effect. Rapid decrease in ATP leads to cellular asphyxiation and potential cell death. Fourth है इसमें symptoms. Symptoms include headache, dizziness, shortness of breath and can progress to seizures and death. 13 है describe ions of heavy metals as irreversible non-competitive inhibitors. इसमें हम 4 एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है बाइंडिंग. हैवी मेटल आइंस फॉर एग्जांपल लेड मर्करी बाइंड टू एंजाइम्स एट नॉन एक्टिव साइट्स.
सेकेंड है irreversibility. Their binding is permanent, altering enzyme structure and function. Third है function disruption. This interference prevents substrate binding and catalysis. Fourth है toxic effects. Inhibition leads to cell dysfunction and physiological harm. What is the differences between? तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे. फर्स्ट है बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट ऑफ एन एंजाइम. इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स या फीचर्स से डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फंक्शन. बाइंडिंग साइट का क्या फंक्शन है? अटैचेस सबस्ट्रेट टू द एंजाइम. और कैटालिटिक साइट का फैसिलिटेट्स द केमिकल रिएक्शन. सेकेंड है लोकेशन. ये है कि पार्ट ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर ये एंजाइम के साथ ही होता है, स्पेसिफिकली डिजाइंड रीजन विद इन द एंजाइम. थर्ड है केमिकल इंटरेक्शन. डिफरेंसेस में आप ज़्यादातर 4 to 5 पॉइंट्स याद करके जाएं, क्योंकि आपको 3 पॉइंट्स तो ज़रूर लिखने होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डिस्कस किए हैं आप उसमें से 3 to 4 चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से. केमिकल इंटरेक्शन क्या है? इसमें कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसमें इंटरेक्शंस एट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट है वो है एंजाइम स्पेसिफिसिटी. डिटरमिन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और इसमें है डिटरमिन्स द टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ये इसमें क्या बताता है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और ये टाइप ऑफ रिएक्शन. सेकेंड पार्ट जो है वो है एपो एंजाइम एंड हॉलो एंजाइम. एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे. ठीक है, तो इसमें है कि द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर और को एंजाइम. विदाउट और को फैक्टर और को एंजाइम उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं. और हॉलो एंजाइम द कंप्लीट एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम इंक्लूडिंग द एपो एंजाइम एंड इट्स को फैक्टर्स, यानी को एंजाइम्स. सेकेंड जो पार्ट है वो इसका है एक्टिविटी. इनएक्टिव होती है ये. ठीक है, रिक्वायर्स एडिशनल कंपोनेंट्स फंक्शन. और यहाँ पर एक्टिविटीज़ की है कि ये एक्टिव रहता है, कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग रिएक्शंस. कॉम्पोजिशन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. मेड अप ऑफ सोली ऑफ अमीनो एसिड्स, कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर्स मेटालाइंस और को एंजाइम्स यानी कि ऑर्गेनिक. लास्ट पॉइंट इसका है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. लास्ट पॉइंट इसका है रोल ऑफ को फैक्टर नेसेसरी फॉर एक्टिविटी एब्सेंट इन एपो एंजाइम, एसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक फंक्शन एंड एक्टिविटी. थर्ड है प्रोस्टैटिक ग्रुप्स एंड को एंजाइम्स. डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देंगे. अ नॉन पॉलीपेप्टाइड अंटिल यूनिट टाइटली बॉन्ड टू एन एंजाइम. को एंजाइम है एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट लूजली एसोसिएट्स विद एन एंजाइम. बाइंडिंग है इसकी परमानेंटली अटैच्ड, और को एंजाइम्स में टेम्परली बाइंड ड्यूरिंग द रिएक्शन. फंक्शन क्या है इनके? ऑफन इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी, एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स. एग्जाम्पल इसकी है इन हीमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पर है NAD+ यानी कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. फोर्थ है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन इसकी है अ नॉन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. नॉन कार्बन, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स वही है जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा. ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स दैट असिस्ट एंजाइम फंक्शन. एग्जाम्पल इसकी क्या है? मेटल आइंस, फॉर एग्जाम्पल Mg+2, मैग्नीशियम कैटाइन, जिंक कैटाइन और आयरन. कोएंजाइम में ये निकोटीन, एडिनिसिन आ जाता है, डी न्यूक्लियोटाइड, FAD और विटामिन भी आ जाते हैं. बाइंडिंग क्या है? यूजुअली बाइंड टाइटली और मे बी लूजली एसोसिएटेड, ऑफन बाइंड यूजुअली एंड रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन. फंक्शन इसका है स्टेबलाइज एंजाइम्स स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेट इन कैटालिसिस, एक्ट एज अ कैरियर फॉर केमिकल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट है लॉक एंड की मॉडल एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. फर्स्ट है फीचर कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन, एक ही बात है. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट टुगेदर परफेक्टली लाइक अ की इन अ लॉक. इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है? एंजाइम स्ट्रक्चर चेंजेस टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट. स्पेसिफिसिटी क्या है इनकी? हाईली स्पेसिफिक, ओनली वन सबस्ट्रेट फिट्स. ठीक है, एक की में एक ही लॉक होगा. मोर फ्लेक्सिबल, कैन एडजस्ट टू डिफरेंट सबस्ट्रेट्स. बाइंडिंग इसकी किस तरह? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव कम्प्लीमेंट्री शेप्स, और इसमें एंजाइम मॉडिफाइज इट्स शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग. इम्प्लीकेशन है सजेस्ट रिजिडिटी इन एंजाइम स्ट्रक्चर,
suggest a dynamic interaction enhancing catalytic efficiency. नेक्स्ट पार्ट है competitive and non-competitive inhibitors. सबसे पहले इसकी हम बाइंडिंग साइट को डिस्कस करेंगे कि competitive inhibitor में बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं. Binds to the active site of the enzyme और non-competitive inhibitor binds to an allosteric site यानी कि not the active site, inactive site भी आप इसको कह सकते हैं. Effect on substrate binding competes with the substrate for the active site, does not compete and bind regardless of the substrate presence. Impact on reaction rate increase Km, decreases affinity but does not change Vmax. Decreases Vmax but does not change Km. ये इसका Km जो है ये कांस्टेंट है. रिवर्सिबिलिटी क्या है? यूजुअली रिवर्सिबल, कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ये सिर्फ रिवर्सिबल रहेगा, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इनहिबिटर. नेक्स्ट है रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर एंड इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर एंजाइम्स इनहिबिटर्स. फर्स्ट है बाइंडिंग. टेम्पररी बाइंड्स टू एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये रिवर्सिबल का फीचर है. और इरिवर्सिबल का क्या है कि परमानेंट बाइंड्स टू एंजाइम और एक्टिव साइट, ये परमानेंट जो है ये इसके नॉन इरिवर्सिबल से भी जाहिर है, ठीक है. और रिवर्सिबल तो ये टेम्पररी भी कह सकते हैं इसको. Effect on activity reduces Vmax, Km unchanged permanently reduces Vmax. Recovery activity restored when inhibitors is removed. Activity cannot be restored. Example is कि heavy metals affecting enzyme function. Aspirin which irreversibly inhibits cyclooxygenase. Thank you.